تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ فلسفہ مغرب کے سے پیدا ہونے والے مسائل کے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ مختلف نظام ہوں یا وہ مختلف ازمز ہوں، سسٹمز ہوں یا نعرے ہوں، ان ساری کی ساری یہ سب جو ہے وہ اسی کا شاخیانہ ہے. ان سے وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جب ہم اس کو تفصیل سے ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا رنگ اور اس کی خوشبو یا بدبو اس ساری چیزوں میں نظر آئے گی. یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. مختصر سے وقت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکولرزم کیا ہے یا لبرلزم کسے کہتے ہیں. دنیا آسان الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ جتنے بھی مذہبی معاشرے ہوتے ہیں وہ دنیا اور دنیا کے امور کو آخرت کی کھڑکی کے اندر سے دیکھتے ہیں. اور جب آپ امور زندگی میں سے وہ امور زندگی جن کا تعلق ہمارے سماجی، سیاسی، اقتصادی ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ان امور سے دین کو بے دخل کر دینا، قصدن جان بوجھ کر دین کو بے دخل کر دینا، اس کا سیکولرزم، اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے. یعنی اپنے اجتماعی نظام زندگی سے دین کو بے دخل کر دینا، یہ ہے سیکولرزم. کوئی یہ سمجھے کہ شاید اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مذہب اور دین کا فرق سمجھ جاتا ہے کہ دنیا میں دیگر اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب وہ مذہب ہیں. مذہب کا مطلب جو انفرادی معاملات میں، عقائد میں، عبادات میں اور چند رسوم و رواج میں تو وہ آگاہی دیں، رہنمائی کریں، کو گائیڈ لائن فراہم کریں، وہ مذہب ہوتے ہیں. لیکن وہ مذاہب جو انسان کو بحیثیت فرد بھی، انفرادی حیثیت میں بھی، یعنی اس کے عقائد، عبادات اور رسومات کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے اجتماعی نظم زندگی سے بھی، اجتماعی نظم زندگی میں بھی گائیڈ کریں. اس کی معاشرت کیسی ہوگی، اس کی معیشت کیسی ہوگی، اس کی سیاست و تجارت کیسی ہوگی. الغرض یہی وہ 6 کام ہیں جن کے گرد ہماری زندگی کے ساری چیزیں طے پا رہی ہوتی ہیں. ہم کسی بھی ساتھ میں کھانے میں نہیں جاتے عام طور پر. تو میری مکمل زندگی کے بارے میں جو آگاہی دے رہا ہوتا ہے وہ ہے دین، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس کا ترجمہ ہم ریلیجس سے نہیں کریں گے، مذہب کا ترجمہ ریلیجن سے آپ کر لیں، لیکن دین کا ترجمہ آپ کریں گے ریلیجن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کمپلیٹ کوڈ آف یور لائف، کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو ڈسکس کر رہا ہو. تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے، یہ اسلام کی شناخت اور آئیڈینٹی یہ ہے، یہ تعارف یہ ہے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کا سٹیٹس مذہب والا نہیں ہے، اسلام کا سٹیٹس وہ دین والا ہے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جو تعارف بیان فرمایا ہے اس نے بالکل واضح کہہ دیا کہ یہ مذہب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور ڈسپلن آف لائف، کوئی اور طرز زندگی، کوئی اور انداز زندگی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین نہیں چاہیے، وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری اور نہ ہی وہ قبول کی جائے گی. یعنی وہ جیسا اترا ہے، جس طرح کا مکمل آیا ہے، ویسے ہی مکمل کا آپ سے مطالبہ کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا مطلب شعار زندگی، طرز زندگی، انداز زندگی، اسلوب رہن سہن، وہ ان اسلوب، ان عادات کے ساتھ جس طرح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے ویسا وہ دین آئے گا. تو اگر کوئی شخص محض چند عقائد اور عبادات کا نام دین رکھ لے یا اسلام رکھ لے تو اسلام ایسا نہیں آیا.
इस्लाम जैसा आया है उसको वैसा ही मानना पड़ेगा। वो बहैसियत कैसा आया है, तो कुरान मजीद ने उसके बारे में तबसरा ये किया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो बहैसियत दीन नाजिल हुआ है और उसको तुम्हें बतौर दीन ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बतौर मजहब के एक्सेप्ट नहीं करोगे, बतौर दीन के ही एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, और अगर तुम चाहो कि तुम इस्लाम के अलावा बतौर दीन, बतौर डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, बतौर तर्ज जिंदगी कुछ और अखज कर लो और वो मिला जुला कर कहो कि ये ले लो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए फलियुक़बल मिन्हु, उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो अगर इस नौयत से हम देखें तो सेकुलरिज्म की हमें तीन किस्में समझ में आएंगी। या तो मुआशी तौर पर एक शख्स दस्तबरदार हो जाए कि मुआशी सरगर्मियां वो बाकी सारा का सारा कबूल है, लेकिन हम कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट में या हम कुछ ऐसी मजबूरियों में गिरफ्तार हैं कि ये वाले जो मामलात हैं मुआशी मामले में हम दस्तबरदार हो जाते हैं। वो तर्ज और वो उसलूब और अंदाज जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि एडम स्मिथ ने जो बनाकर दे दिया है हम अपने पैसे की सर्कुलेशन को उसी के गिर्द घुमाएंगे और वही ठीक है और आज के जमाने में वही एक्सेप्टेबल है और आज के जमाने में वही चल सकता है। पहले कबूल नहीं किया जाएगा। और या फिर कोई शख्स कहे कि नहीं मुआशी मामला को देख लेंगे, मे भी पॉसिबल, मे भी इसका इंतजाम हो जाए, लेकिन हम अपने सियासी उमूर के अंदर, सियासी मामलात में वो हम दीन से दस्तबरदार हो जाते हैं। वो जो हकम बनाने का तरीका कुरान और सुन्नत ने तय फरमाया, हम अपने इज्तिमाई फैसले वो किसी और अंदाज और उसलूब से कर लेंगे, अपने अमूर सियासत, अपने अमूर सल्तनत को किसी और ढांचे से साथ चला लेंगे। हम फराइज के क्याम की बजाय हुकूक की जद्दोजहद सिखा लेंगे या हुकूक के निफाज की जद्दोजहद कर लेंगे, या किसी रियासत को चलाने के जो बेसिक पिलर्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आए हैं उसकी बजाय हम कार्ल मार्क्स से ले लेंगे। फलन युक़बल मिन्हु, कबूल नहीं किए जाएगा। तो सेकुलरिज्म की दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक शख्स बाकी उमूर में तो वो कलमा पढ़े, दुरूसी भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, लेकिन अपने सियासी उमूर में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्तबरदार हो जाए। या फिर अपने मुआशरती उमूर में, मुआशरती अपने इलाकों का रहन सहन, उस एतबार से वो दस्तबरदार हो जाए कि हम बाकी उमूर में तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, पाबंदी करते हैं, लेकिन इन उमूर में से किसी एक अमर में दस्तबरदार हो जाना वो सेकुलरिज्म ही होगा, वो सेकुलर ही कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन के हवाले से वो आपको जो नोट्स भेजे गए हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हवाले से भी कि सेकुलर मीन अपने इज्तिमाई निज़ाम ज़िंदगी से दीन को बेदखल कर देना। ये जितने भी रिलीजियस यानी मजहब को या अपने स्पिरिचुअल को, तो उनको अपने दुनियावी उमूर से दूर रखना। हमारे बरसगीर में चूंकि सेकुलरिज्म का तर्जुमा बेदीनी से कर दिया जाता है, हालांकि जो सेकुलरिज्म का जो इसके अव्वलीन बानियान थे उनका दावा यह था कि हम आप अपनी जो फिजिकल लाइफ है, जो आम अमूमी जिंदगी है, इस जिंदगी में मजहब को दाखिल ना करो। मजहब पे रहना तो जाकर मस्जिद में या चर्च में या वो अपने उन मामलात में मजहब से तस्कीन हासिल कर लो, लेकिन अपने एक्चुअल वर्ल्ड में अपनी मादी जिंदगी के अंदर मजहब से रहनुमाई हासिल ना करो, ये था। लेकिन इसको बयान करने वाले लोग, सेकुलरिज्म के हामी और मुद्दई लोग, वो मजहब के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करते थे, मजहब के बारे में तज़हीक आमेज लहजा और रवैया रखते थे। इसलिए मुआशरों में सेकुलरिज्म मीन लादीनियत से ही मारूफ और मशहूर हो गया। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, ये तीनों शक्लें हो सकती हैं कि सियासी उमूर में मजहब से और दीन से रहनुमाई से दस्तबरदार होना, माशी उमूर में या सियासी उमूर में, या फिर
माशरती अमूर में, या इनमें से किसी एक में वो सेकुलरिज्म की ही शक्लें कहलाएंगी। यानी जो बाल्फाज दीगर आप यूं कह सकते हैं, आपने कभी भी कोई सुनन की किताब देखी हो अहादीस मुबारका में, या फिक़ह की किताब देखी हो, तो फिक़ह की किताब की अगर 4 जिल्दें हैं तो पहली जिल्द कौन सी होगी? इबादत। नमाज से पहले तहारत जरूरी थी, लिहाजा तहारत वाली जान, ठीक, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। और बाकी 3 जिल्दें किस पे हैं? किताबुल बुयू, किताबुल निकाह, किताबुल शुफा। इस पर तफसील से गुफ्तगू हो चुकी। किताबुल बुयू किताबुल मईशत है, और किताबुल निकाह माशरत है, और किताबुल शुफा सियासत। तो हम जो अहकामात शरीयत जो नाजिल किए गए, उन अहकामात को जब जमा किया गया तो उसकी ये शक्ल सामने आई। तो अब इनमें से किसी एक में इबादत, और अगर कोई शख्स इतने को ही दीन समझे, फलन युक़बल मिन, या इनमें से इतने को दीन समझे, या इनमें से इतना को दीन समझे, या फिर ऐसा करे, ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, चूंकि जो सेकुलरिज्म के हामी लोग थे वो मजहब से तासुब रखते थे, बुरी जुबान इख्तियार करते, या उनके लहजे में एक तज़हीक अमीज़ लहजा होता, इसलिए मजहबी मुआशरों पर उसका दाव पे इस कदर चल ना सका। इसका जो आप इसी का एक नया वर्जन जो समझ लें कि लिबरलिज्म क्या है, वो भी यही चीज है किस्म की, थोड़े से फर्क के साथ। लिबरलिज्म के जो बानी थे या उनको जो बयान करने वाले थे वो खुद ईसाई मजहब के उलमा थे, या ईसाई मजहब से गहरी वाबस्तगी रखने वाले थे। और जब उन्होंने ये तसव्वुरात पेश किए तो ये उससे भी ज्यादा फैले। यानी तुमने मजहब को इख्तियार करना है कर लो, लेकिन मजहब को सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर रखो, ये बाहर नहीं निकले। तुम मुसलमान रहना मुसलमान रहो, ईसाई रहना ईसाई रहो, सिख और यहूदी रहना वो रहो, लेकिन अपने नज़्म इज्तिमाई से इसको दूर रखो। मजहब की हैसियत वो आपकी गर्मा गर्म चाय की तरह है, जिससे आप तलज़्ज़ुज़ और लज्जत उठाते हो, या आपकी शिकंजवी की तरह है, या आपकी लस्सी की तरह है, आपकी चाहत की तस्कीन है। हाँ, इस तरह उसको इस्तेमाल करना है तो कर लो। दोनों सूरतों में इंसान ही खुदा रहेगा, वो सेकुलर हो या वो लिबरल हो, दोनों आजादी पर ही खड़े होंगे, दोनों मसावत ही का नारा लगाएंगे, बाकी सारी चीजों में बराबर है। एक है कि मजहब के बारे में तअस्सुब रखता है, दूसरा है कि वो उस तअस्सुब को शक्कर कोटेड कर देता है, ठीक है। एक है मजहब के बारे में गंदी जुबान और तज़हीक अमेज लहजा इख्तियार करेगा, दूसरा तज़हीक अमेज लहजा तो इख्तियार नहीं करेगा, लेकिन उसकी बाउंड्रीज और उसकी लिमिटेशन रख के उसको कह देगा क्योंकि इंसानी जबिल्लत में बहुत सारे तकाजे हैं, तो जबिल्लत की एक ये भी है कि वो किसी के सामने सरनगू हो, या वो अपने आंसू बहाले तो जरा वो फ्रेश फील करता है। लिहाजा मजहब को तुम इस तरह लो, नॉट फॉर गाइडेंस, रहनुमा नहीं ले सकते, रहनुमा ये यहीं से होगा, ठीक है जी। जुमला मोतरजा के तौर पर एक बात समझ लीजिए कि जितने भी जब हम मुखालफत करते हैं आज़ादी की या अकल के तसव्वुरात की, तो वो इस्लाम उनकी हैसियत है। इस्लाम में वो सारी चीजें कबूल हैं बतौर सलाहियत के। ये सबसे अहम बात है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इस्लाम उन चीजों को एक्सेप्ट करता है बतौर सलाहियत के, मीज़ान और तराजू के नहीं। अकल सलाहियत है, तराजू नहीं। आजादी मेरी सलाहियत है, तराजू नहीं, ठीक है। और कुफर क्या करता है, वो तराजू बनाता है, और हमारा तराजू बिल्कुल तयशुदा है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान, तो फुरकान जो है हक और बातिल में फर्क करने वाला जो तराजू है वो जल्ल जलालुहु ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, ठीक है जी। तो ये फर्क था सेकुलरिज्म में और लिबरलिज्म में। इसकी एक दलील भी है, ये दलील मैं आपको पढ़ा देता हूँ, दलील सुना देता हूँ, इसका जवाब जो भी नहीं बताऊंगा, और जवाब मैं आपसे पूछूंगा। इसका दावा ये है कि दुनिया में आए हुए सारे के सारे इंसान, वो कहता है जो मैं तसव्वुर अदल पेश कर रहा हूं वो इतना आदिलाना
इतना मुनसिफाना है कि दुनिया के तमाम अफराद उस मुनसिफाना और इंसाफ वाली चीज पे खड़े हो सकते हैं, और बाकी जितने भी मजाहिब हैं वो अपने उस खास एरिए खास लोगों को तो इंसाफ फराहम करेंगे, दूसरों को इंसाफ नहीं दे सकते। लिहाजा मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ वो सबको इंसाफ दे। बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद